Students, in the question 1, a vector A makes an angle of 20 degree and vector B makes an angle of 110 degree with the x-axis. The magnitude of these vectors are 3 meter and 4 meter respectively. Find the resultant. तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं. So in question number 1, so what we have, so this is your x-axis. So we have given two vectors. आपका जो vector A है that makes an angle of 20 degree और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 मीटर है. एंड बी वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 110 और उसका मैग्नीट्यूड इज 4. So this entire angle is your 110 degree. Okay, so ये 4 मीटर. So this is your vector A and this is your vector B. So this is given to us. अब बच्चों ध्यान से देखो, 100 minus 20 will be 90. So the angle between these two vector is 90 degree. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ vector A is perpendicular to vector B and we have to find the magnitude, we have to find the resultant. So the resultant will be, when the two vectors are perpendicular to each other, the resultant will be square root of A square plus B square. So it will be square root of 3 square plus 4 square, which is 5 meter. So the magnitude of the resultant is 5 meter, and now we have to find the angle which it makes with the x-axis. Okay, so सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि एंगल विच द रिजल्टेंट मेक्स विद द ए वेक्टर. सो योर रिजल्टेंट विल बी समथिंग लाइक दिस. मैं यहाँ बना लेता हूँ. So this resultant makes an angle phi with the vector A. और आपको tan phi का फॉर्मूला तो पता ही है, ठीक है. tan phi will be, in this case, is your B vector by A vector. तो यहाँ B by A लिख देता हूँ. So B is 4 and A is 3. और ये एंगल आपको पता है, एक हमारा स्टैंडर्ड एंगल है 4/3. So it is 53 degrees. So phi is 53 degree. तो R vector makes an angle of 53 plus 20 degree, that is 73 degree with x axis. Students, so this is the answer of question number 1. अब देखते हैं question number 2. So let A and B be the two vectors of magnitude 10 units each. तो हमको given है A vector is equals to B, मतलब the magnitude of A vector is same as the magnitude of B vector, and that is equals to 10 units. And if they are inclined to the x-axis at an angle 30 degree and 60 degree, तो यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं. So this is your x-axis and they are inclined at 30 degree and 60 degree. So say this is your vector A making an angle 30 degree, and this is your vector B making an angle 60 degree with the x-axis. Find the resultant.
तो बच्चों इसका अगर रिजल्टेंट निकालें, आपको पता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जब भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो उनका रिजल्टेंट लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर। तो जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी this. So this is the resultant vector and it lies along the angle bisector. यहाँ मैं लिख देता हूँ when two vectors are having equal magnitude, their resultant lies on the angle bisector of the angle between two vectors. ओके, तो एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। और इस केस में जो रिजल्टेंट होता है इज टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द वेक्टर। तो यहाँ पे सपोज मैंने ए लिख दिया है कॉस थीटा बाई टू, where theta is the angle between the two vectors. So angle between the two vectors will be 30 degree, 60 minus 30. So this angle is 30 degree. So theta here is 30 degree. So आप इसको लिख सकते हो 2 a is your 10 cos 15 degree. ओके, और जो उसका एंगल है आपको पता चल गया कि ये एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल का ए और बी के बीच में। सो दिस एंगल इज़ 30, दिस एंटायर एंगल इज़ 30, तो उसका हाफ विल बी 15। तो मैं यहाँ पर ऐसे दिखा देता हूँ। सो दिस एंगल विल बी 15 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक का तो आपको पता है 30 डिग्री। सो योर रिजल्टेंट, सो दिस इज़ योर रिजल्टेंट। ठीक है, आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो 20 cos 15 डिग्री। तो अगर एंगल आपका स्टैंडर्ड नहीं आता है जो आपने पढ़ा है टेबल जिसका याद किया है, तो आप उसको एज इट इज़ छोड़ सकते हो। और R will make an angle of 45 degree with x axis। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ 15 एंड दिस इज़ 30, तो ये पूरा एंगल हो गया 45। तो यहाँ से मेरे 45 degree। So this is the answer of question number 2. So let's see the third question. Add vectors a, b and c each having magnitude 100 units and inclined to the x-axis at 45। तो आपको सभी का दिया है, 3 वेक्टर्स हैं a, b and c, all having the same magnitude 100 units. Suppose this is your x-axis। तो वेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं। जो a वेक्टर है इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, and b vector makes an angle of 135, so 135 यहाँ से यहाँ तक। So if this is 135 and this is 45, so the angle between a and b is 90 degree, and vector c makes an angle of 315, that is 360 minus 45, so it will be directly opposite to this vector. ओके, तो यहाँ से ये आपका 315 है, इसको मैं दिखा देता हूँ। सो इट विल बी समथिंग 315 डिग्री, और ये एंगल आपका होगा -45।
तो ये आपको मिल गया। तो बच्चों अगर ध्यान से देखें, this is 135 and this is 45, so 135 plus 45 is 180. So B and C are directly opposite each other. ठीक है, therefore they will cancel out each other. तो मैं लिख सकता हूँ B plus C will be a null vector. ओके, तो ये दो वेक्टर तो पिक्चर से ख़त्म ही हो गए हैं। अब हमारे पास केवल एक वेक्टर A बचा है, B। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स, मतलब हमको इनको ऐड करना है A प्लस B प्लस C, जिसमें आपको पता है कि ये नल वेक्टर है। तो A वेक्टर है क्या आपका? A का जो रिजल्टेंट है ये दिया हुआ है कि इसका मैग्नीट्यूड इज़ 100 यूनिट। तो वी हैव टू फाइंड दिस, ओके, एंड इट इज़ अल्टीमेटली इक्वल्स टू A वेक्टर। और A वेक्टर क्या है? इसको आप क्या लिख सकते हो? It is a vector with a magnitude 100 and it is inclined at an angle of 45 degree. So that is the answer. इसका जो magnitude है that is 100 units and makes, so R, so ये आपका resultant का magnitude है, R makes an angle of 45 degree with x axis. ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हमको A एंड B वेक्टर गिवन है इन यूनिट वेक्टर नोटेशन 4i कैप प्लस 3j कैप एंड 3i कैप प्लस 4j कैप। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ A, B, A प्लस B एंड A माइनस B। सो वी हैव गिवन A दैट इज़ 4i कैप प्लस 3j कैप and B vector which is 3i cap plus 4j cap. So first of all we have to find the magnitude of A. So that will be, आपको पता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला आपका क्या है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, so it is 5, okay. और second part is magnitude of B, so it will be 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज़ 5। तो बेसिकली इनके कंपोनेंट्स का आपने स्क्वायर करना है, फिर उनको सम कर देना है एंड देन यू हैव टू टेक द स्क्वायर रूट। तो ये कंसेप्ट तो हम अपने कंसेप्ट वीडियोस में कर लेंगे, तो ये तब कवर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट इज़ वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B। सबसे पहले हम A प्लस B वेक्टर निकाल लेते हैं। इट इज़ 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप। सो इट कम्स आउट टू बी लाइक टर्म्स को आप आपस में ऐड कर दो। सो 4 प्लस 3 विल बी 7i कैप, 3 प्लस 4 विल बी 7j कैप। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B will be, it comes out to be 7√2। ये आप निकाल सकते हो। 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 49 प्लस 40, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब इसको फिर से लिख देता हूँ, 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ओके, so it comes out to be 7√2। and the D part is A minus B vector, so 4i cap plus 3j cap minus 3i cap minus 4j cap, so it will be I cap minus j cap, and we have to find the magnitude of this, that will be square root of 1 square plus minus square, so it comes out to be √2। okay, so this is your question number 4। okay, in question number 5 what we have given this figure, so there are 3 vectors given and we have to find the magnitude, B, x and y component and the angle with the x axis of the resultant of OA, BC and DE। तो ये हमारे 3 वेक्टर्स गिवन हैं, आपने इनका मैग्नीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट का, और आपने इनका x और y कंपोनेंट निकालना है।
और आपने एंगल निकालना है जो ये वेक्टर बनाएंगे विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं इसको। तो जब भी आपको बच्चों ऐसे वेक्टर्स गिवन हो तो आप क्या कर सकते हो, इन सभी को ट्रांसलेट कर सकते हो और सभी की टेल्स को ओरिजिन से कोइंसाइड कर दो। तो अब इस वेक्टर को मैं यहाँ ट्रांसलेट कर दूंगा, इस वेक्टर को मैं यहाँ पर ट्रांसलेट कर दूंगा। तो फाइनल फिगर जो होगी इन क्वेश्चन नंबर 5, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। So this is your one vector that is 1 meter long along negative y direction, and this vector makes an angle 30 degree. (2 meter long), and this vector makes 60 degree with the negative x-axis, or you can say this angle is 120 degree. If this is 60 तो ये होगा आपका 120 with the positive x-axis, और इसका मैग्नीट्यूड इज 1.5 मीटर। ठीक है बच्चों, तो आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इनके एंगल्स मेजर कर लिए हैं, और ये जो है आपका वाई डायरेक्शन में ही है। तो सपोज मैं इनको नाम दे देता हूँ, से दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी, एंड दिस इज योर वेक्टर सी। तो सबसे पहले हम ए वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स में लिख देते हैं, आई कैप और जे कैप में। सो इसको हम लिख सकते हैं, द एक्स एक्सिस जो उसका एंगल है दैट इज़ 120, तो इसको आप लिख सकते हो योर मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस थीटा आई कैप प्लस मैग्नीट्यूड टाइम्स साइन थीटा जे कैप। सो इट विल बी 1.5 cos 120 degree I cap plus 1.5 sin 120 degree J cap. ओके, सो cos 120 आपका होता है -1/2, सो 1.5 तो आपका कॉमन हो गया, और यहाँ पे -1/2 आई कैप प्लस, और साइन 120 आपका होता है √3/2। सो दिस इज योर ए वेक्टर, और इसको फर्दर मैं ऐसे लिख देता हूँ 1.5/2 आई कैप प्लस 1.5 √3/2 जे कैप। लेट अस सी बी वेक्टर क्या है आपका। बी वेक्टर विल बी मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस थीटा आई कैप मैग्नीट्यूड टाइम्स साइन थीटा जे कैप। सो इट विल बी 2 cos, तो प्रोजेक्शन आपने लिया बेसिकली इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में, दैट विल बी मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस थीटा। तो जिस डायरेक्शन में आपने, जैसे इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ले रहे हैं और एंगल आपको गिवन है, तो आपका वो कॉम्पोनेंट होता है कॉस थीटा। टू साइन 30 डिग्री जे कैप। So it comes out to be cos 30 is your √3/2, so it is √3, and sin 30 is 1/2, so it comes out to be 1. Now let us see what is the c vector. C vector तो आपको दिख रहा है, it is pointing in the negative y direction, so it will be minus j cap because the magnitude is 1 meter. ओके बच्चों, तो इन सभी के साथ आप मीटर लगा सकते हो यूनिट, बिकॉज सभी आपको मीटर में गिवन है, तो सभी के साथ मैं मीटर लगा सकता हूँ। सो वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले तो हम a प्लस बी प्लस सी निकाल लेते हैं। तो इन सभी को हमने ऐड करना है, तो आई वाली टर्म्स आपस में ऐड कर देते हैं। सो दिस विल बी -1.5/2 प्लस √3 आई कैप, ओके, और प्लस 1.5 √3/2 1 जे कैप माइनस जे कैप, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली वी विल गेट दिस।
ओके और इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. सो इट विल बी -0.75 प्लस 1.732 I cap plus 0.75 √3 J. ओके तो इसको लिख सकते हैं 0.98 और इसको हम लिख सकते हैं 0.75 इंटू √3. इसको लिख सकते हैं 1.3 J गैप. ओके और इनका अगर पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है इन दिस क्वेश्चन मैग्नीट्यूड एंड देन एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट, तो सबसे पहले तो हम एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट बता देते हैं, इसका बी पार्ट बता देते पहले. सो एक्स कॉम्पोनेंट इज इक्वल्स टू 0.98 मीटर, ये जो एक्स कॉम्पोनेंट है, एंड वाई कॉम्पोनेंट विल बी 1.3 मीटर. और अब हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका, दैट इज द रिजल्टेंट. सो रिजल्टेंट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 0.98 स्क्वायर प्लस 1.3 स्क्वायर. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. प्लस 1.3 स्क्वायर, so it comes out to be 1.63. so 1.63 मीटर. ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा ए और बी हो गया है. एंड द एंगल विद द एक्स एक्सिस, तो जब भी आपको एंगल निकालना होता है, एंगल के लिए यू हैव टू, अगर आपका प्लेनर वेक्टर है, सो वाई कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कॉम्पोनेंट, दैट विल गिव्स यू tan phi, where phi is the angle which your resultant makes with the x axis. तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर, your C part tan phi, the angle which the resultant makes with the positive x axis will be 1.3 divided by 0.98. okay, so it comes out to be 1.32. सो इसको लिख सकते हैं phi comes out to be tan inverse 1.33. so this is the answer. ओके तो इसको अगर मैं दिखाना चाहता हूँ, ऐसा दिखा सकता हूँ वेक्टर को, ये आपका x एक्सिस है और ये y है, एंड इट मेक्स दिस एंगल. तो इसको अगर आपने एग्जैक्ट निकालना है होता कितना है, तो मैं चेक कर लेता हूँ. tan इनवर्स 1.33, so it is 53, so that is approximately 53. so it will be something like this. so this is your resultant, a plus b plus c, and it makes an angle of tan inverse 1.33, that is nearly equals to 53. so this is the answer. चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. So two vectors having the magnitude 3 and 4 units respectively, what should be the angle between them if the magnitude of the resultant is 1 unit? Okay, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये. आपको दिया है सपोज ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड इज़ 3 यूनिट, एंड देयर इज़ अ बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड इज़ 4 यूनिट. तो आपको ए में पूछा है कि अगर जो रिजल्टेंट है वो अगर 1 यूनिट है, सो व्हाट इज़ दी एंगल. तो एंगल निकालना है, तो हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं. यहाँ पर जनरल फॉर्मूला लगेगा अपना, आर इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 1, और यहाँ पर ये स्क्वायर, यहाँ पे 1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा. सो इट कम्स आउट टू बी
ये आपका हो गया 9 + 16 25, तो यहाँ पर आ जाएगा -25 डिवाइडेड बाय 2 × 12 cos थीटा। तो ये -24 और नीचे 24, सो इट कम्स आउट टू बी -1। सो -1 कब होता है? व्हेन द थीटा इज 180 डिग्री और पाई रेडियन। ठीक है, वो 20 पार्ट में आपको क्या गिवन है? योर रिजल्टेंट इज 5 यूनिट। अगेन सेम फॉर्मूला लगा देते हैं हम। तो यहाँ पर आपका 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 cos थीटा। ये कितना है? 25 25, तो ये इससे कैंसिल हो गया 25 25। सो इट कम्स आउट टू बी cos थीटा इक्वल्स टू 0। सो 0 कब होता है? व्हेन द थीटा इज 90 डिग्री और π/2। थर्ड पार्ट, when the resultant is 7। ओके, फिर से लगा देते हैं 7 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 cos थीटा, एंड इट इज़ 49 - 25। ओके, तो यहाँ पर आपका आएगा 24 और यहाँ से भी आपका आ जाएगा 24। सो cos थीटा, सो cos थीटा कम्स आउट टू बी 1। तो ये कब होता है? व्हेन द एंगल इज 0 डिग्री। So this is the answer of question number 6. Okay. Okay, students, in the next question, question number 7. A spy report about a suspected car reads as follow: the car moved 2 km towards east, made a perpendicular left turn, ran for 500 meter, made a perpendicular right turn, ran for 4 km and stopped. Find the displacement of the car. बेसिकली अगर इस ऐसा क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले तो हम डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर सब ईस्ट जा रहा है वो, और ईस्ट से फिर वो लेफ्ट लेता है, देन राइट। ओके, सो दिस इज योर ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज योर साउथ, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज वेस्ट। तो सबसे पहले मैंने डायरेक्शन स्पेसिफाई कर लिया है, अब मैं डिस्प्लेसमेंट दिखाता हूँ इसकी। सो द कार मूव 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर उसने मूव किया, देन मेड अ परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न। तो जब भी आपको टर्न देखना है तो यू हैव टू थिंक विद रिस्पेक्ट टू द कार ड्राइवर के हिसाब से। अगर आप लेफ़्ट लोगे तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे, सो लेफ़्ट डायरेक्शन में। रैन फॉर 500 मीटर, मतलब 0.5 किलोमीटर। मेड अ परपेंडिकुलर राइट टर्न, अब आप राइट मुड़े, एंड रैन फॉर 4 किलोमीटर। So this is the question. So यहाँ पर we have 3 displacements, and then यहाँ पर आप stop। तो यहाँ पे रुक गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर रुक गया, एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? मैं इनको नाम दे देता हूँ। दिस इज़ योर वेक्टर ए, दिस इज़ योर वेक्टर बी, एंड दिस इज़ योर वेक्टर सी। सो जो डिस्प्लेसमेंट होगा ओके, जिसको मैं एस से डिनोट कर देता हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। और बच्चों इसको अगर मैं एक्स एक्सिस मानता हूँ तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होगा वो होगा आई कैप, और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा जे कैप। तो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर नोटेशंस में सभी डिस्प्लेसमेंट्स को लिख देते हैं। सो ए वेक्टर कैन बी रिटन एज 2 आई कैप, ठीक है, किलोमीटर्स में है,
and B vector can be written as in the y direction 0.5 j cap kilometer, and the C vector is in the positive x direction, so इसको हम लिख सकते हैं 4 I cap. So your displacement will be the sum of these. So 2 plus 4 6 I cap plus 0.5 j cap. So this is in kilometer and we have to find the displacement. तो यहाँ पर आप उसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो. तो मैग्नीट्यूड बताने के लिए हम क्या करें, तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. सो इट विल बी सिक्स स्क्वायर प्लस 0.5 square, so it will be square root of 36 plus 0.25 square root of 36.25, so it comes out to be 6.02 kilometer. Now if you want to find the, अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पर आप सीधा इसको दिखा भी देता हूँ मैं डिस्प्लेसमेंट है क्या यहाँ पर. सो बेसिकली a प्लस बी प्लस सी क्या है, दिस वेक्टर. सो दिस वेक्टर इज योर डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे सिंपल आप कह सकते हो वी हैव अप्लाइड द पॉलीगन लॉ और हमने रिजल्टेंट निकाल दिया. तो इसका जो एंगल होगा, लेट अस से कि दिस एंगल इज थीटा, सो tan थीटा विल बी y component upon x component 0.5 upon 6, और इसको इन टर्म्स ऑफ इसी में छोड़ देते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 0.5 upon 6. So it will be 1/12, so theta comes out to be tan inverse 1/12. So this is the answer of question number 7. Okay, thank you.